Hello everyone, good morning. I hope you all are completing these numericals from yesterday. So today also we'll continue the same, and by tomorrow we will be completing our this particular topic at least till the numericals of it, right? So we'll continue. At the same time, let me tell you one more thing that we have planned a test today. We had planned, but keeping in mind the students' work and their time for homework and everything, at the same time schools are going on. We are taking the test on Sunday. I purposely did not send the message till this time because I thought in case if you get some time at least you will be continuing to prepare. So accordingly, I did not convey this, but of course today I'll be telling you or and sending the message accordingly in the group as well. So I don't know whether you are going to watch the video today or no, because you must be preparing for your test, and it's a good thing. Good thing if you prepare by Sunday, you will prepare well. You will prepare perfectly. Okay. Anyway, we'll continue the video. Let's not waste time. Considering your topic and this questions which are going on, you must be thinking कि कुछ नहीं, it is not difficult. It just using a simple formula, that is r is equals to v upon I. All the questions are solved, right? At the same time, second formula is rs is equals to r1 plus r2 and all, and 1 upon rp is equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 and so on. So these three formulae we have to use, and nothing else is not difficult. But remember one simple thing, that maybe it has got only these three formulae to use, but there it has got trick in it. It has got tricky questions. Okay, so one need to properly understand everything and then only come to the conclusion. So now here is the next question, which is of similar category, and as I said, there is a trick in it. So find a current through 6 ohm resistor. Looking at this particular क्वेश्चन डायग्राम, 6 ओम रजिस्टर से जाने वाला करंट मुझे फाइंड करना है, दैट्स इट. एंड पीडी, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हम बाद में देख लेंगे, पहले ये वर्क करते हैं. 6 ओम मतलब आई हैव टू चेक द करंट पासिंग थ्रू 6 ओम रजिस्टर. ठीक है. बैटरी कितनी है? ऑफ कोर्स इट इज़ 4 वोल्ट की बैटरी है, राइट. सो नाउ दिस 4 वोल्ट बैटरी, यू कैन इमेजिन 6 वोल्ट and 3 volt are in series. So whatever the current is passing, it is passing through the same current from these two resistors. So whether I am finding of 6 ohm or 3 ohm, one and all same. That's one thing. Second thing, at the same time, one should understand that the current passing through this 6 ohm and 3 ohm is different than the current passing through 12 ohm and this 3 ohm. Right? It's different than that. So the current is different in this case. But as I said, the current is different, but the potential difference when it is connected in the parallel combination is constant. So I mean to say, try to understand whether this particular part of the circuit is there or not there, it hardly matters for the potential difference here. That one need to understand. Okay, because the 4 volt potential difference, same is applied to 6 and 3 and 12 and 3. Same is applied. So I might reduce this diagram to this particular way. I'll tell you. This is the way how I can reduce it, right? 4 volt, because you know that the parallel combination, the potential difference is constant. So that's what I said even yesterday. You have to remember this. In parallel, what remain constant, and in series, what remain constant. In parallel, what remain constant is nothing but, and when it comes to series combination, the current remain constant. So now, as I have said, okay, this 6 ohm, that means the first set of resistor and the second set of resistor, they are parallel to each other. So potential difference across 6 and 3 will remain same as potential difference across 12 and 3. So I wanted 6 and 3, that's the reason only I took that. If I would have required for 12, I would have taken that particular diagram. So now in this case, I will find out the total resistance, because this time it is in series combination and current is constant. Okay, and the potential difference will vary in series. Now that is very important. In series combination, the potential difference is going to vary. But one thing is true, that the current remains constant. So I will find out the total current in the circuit. This is what the circuit is. I will find out the total current in the circuit. That is Rs is equals to 6 plus 3, which is 9 ohm. I hope you got it.
and there is a potential difference V, resistance is there with me, I can easily find out using R is equals to V upon I, that is I is equals to V upon R. V is 4 and R is 9. So what is the current passing through it is nothing but I is equals to 4 by 9 ampere current is passing through it. Okay, passing through the complete circuit, fine, but as it is in the series combination, current remains constant, and that is what the current is. That's it. It's a simple idea, right? Clear? Now let's talk about the next one. So I'll just discard this and we'll again continue solving the question for PD across the 12 ohm resistor. So now we have to work on PD across the 12 ohm resistor. One thing is very clear now. Right now we need to understand one simple thing before we start to find out the PD across 12 ohm. Because whatever is asked to find out, the other quantity you must know. That means if you are asked to find out PD, you must know the current. And if you are asked to find out current, you must know the PD. That's it. It's a simple idea. So I am asked to find out a PD. That means I should know the current. Okay, once I know the current passing through 12 ohm, then I can find out the PD. So as we have done the previous concept, the same thing we will continue. That means I will take 4 volt battery. Here is 12 ohm, here is 3 ohm. I know that same potential difference is applied to both, right? So first of all, I will find the current. How can I find the current? पहले RS निकालो, 12 plus 3, which is 15 ohm. So how will you find out the current here? Right? R is equals to V upon I is equals to V upon R, which can give me V, that is potential difference, which is 4, R is 15. So I think that's it. Is a current passing through 12 ohm resistor. Now I know that this much is current passing through 12 ohm resistance. This is the resistance R. So for PD across 12 ohm resistor, I know that R is equals to 12 ohm and I is equals to 4 by 15 ampere. So I can easily find out V. V क्या हो जाएगा देख लो, IR. Okay, if I shift this R here, so here if I shift, V is equals to IR हो जाएगा in Ohm's law, right? So V will be equal to I, which is 4 by 15 into 12, right? So 3 4s are 3 5s are 15, 4 4s are 16 upon 5 volt. So what is the potential difference? 16 upon 5. If you want, you can convert into decimal and you will get your answer. But the base idea here is the same. So try to understand. It's not just as simple as like using some R, some I, and some V. It has got a trick. Okay, so and you must understand that. So as I have said already, first of all, keep in mind what remain constant in the resistance is connected in series and resistance is connected in parallel. One thing you have to keep in mind. And second thing you need to understand, whatever is asked to find out, the other quantity you should know. There are only two quantities. Resistance is constant, so you don't have to worry for resistance. There are two quantities, one is potential difference and current. If PD is asked to find out, you should able to know the current, and if current is asked to find out, you must know the potential difference. That's it, a simple idea. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, अभी ये भी सेम क्वांटिटी है, चेक करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन द कंप्लीट कॉन्सेप्ट. विल सॉल्व क्वेश्चंस एज इट इज आस्क्ड इन द सीक्वेंस. फाइंड टोटल रेजिस्टेंस. तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये दो तो किस में है? पैरेलल में है. तो इफ आई कंसिडर दिस एज R1, दिस एज R2 एंड दिस एज R3, आई हैव 1 upon RP is equals to 1 upon R2 plus 1 upon R3, which can be equal to 1 upon 3 plus 1 upon 6, which will be equal to, I remember the answer is 3 by 6. Okay, we have done this yesterday only, which is 1 by 2. Okay, or you can do it. So RP is equals to 2 ohm. But now R1 and RP, that means this complete is connected in a what do you say, series combination, like this. I can reduce it to this way, and ये combination is of 2 ohm. ठीक है, तो I can convert this to get RS or total resistance of the circuit, which is 4 ohm
प्लस ओम क्यों लिख रहा हूँ मैं, आई एम गोइंग मैड. Okay, plus 2 which is going to be 6 ohm. So the total, the first answer is done, that is 6 ohm is the total resistance. Total current in the circuit. अभी ये तो total resistance है मेरे पास, potential difference है. देख लो, current is asked to find out, that means potential difference must be given. तो ये तो दिया हुआ है, तो I can easily find out using Ohm's law. R is equals to V upon I. Current is asked to find out, current is equals to V upon R. I is equals to V upon R. ओके, ये टोटल करंट पूछा है, तो आई एम यूजिंग दैट इन दैट वे. तो V is 12 upon 6. द आंसर इज 2 एम्पियर. करंट इज पासिंग थ्रू द कंप्लीट सर्किट. बट कंप्लीट सर्किट द 2 एम्पियर करंट इज पासिंग, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग. चेक करते हैं. यहाँ से 2 एम्पियर करंट गया, 4 से 2 एम्पियर जा रहा है, फिर 2 एम्पियर डिवाइड हो गया. ओके, इसमें से 2 एम्पियर नहीं जा रहा है, इसमें से 2 एम्पियर नहीं जा रहा है. ओके, इट इज गेटिंग डिवाइडेड. हाँ, लेकिन 4 ओम से कितना जा रहा है, 2 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर. तो अभी चेक करते हैं पीडी अक्रॉस द 4 ओम. ठीक है, 4 ओम में से कितना पीडी जा रहा है. तो 4 ओम में से अगर मुझे पीडी चाहिए तो मैं लिखता हूँ फॉर पीडी अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर. तो पीडी चाहिए तो मतलब करंट मुझे पता होना चाहिए. सिंपल सी बात है, जो मुझे चाहिए उसका नेक्स्ट मुझे पता होना चाहिए. तो आई शुड नो द करंट. तो आई इज इक्वल टू, करंट मुझे पता है 2 एम्पियर है, 4 ओम में से 2 एम्पियर करंट जा रहा है. आर इज 4 ओम, राइट. वी कैन इजीली फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस. फिनिश्ड, दैट्स इट. वेरी सिंपल आइडिया. अभी आप पूछोगे कि इफ व्हाट इफ आई वुड हैव आस्क्ड फॉर 6 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर 3 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, तो उसके लिए अलग वे है. ओके, उसके लिए अलग वे है. तो वो अलग वे अगर इनकेस क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये आइडिया तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया. दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड. इट्स नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट ईजी. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम नहीं है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए. इन द सर्किट डायग्राम फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम ऐसा होना चाहिए. इन द करंट, अच्छा अरे ये अलग है. अच्छा, इन द डायग्राम द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओहम. ओके सॉरी. In the diagram, current flowing across 5 ohm is 1 ampere. Find the current through 4 and 10 एम्पियर. तो ये वही क्वेश्चन है, देख लो, ये ऐसा वाला क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ दिस इज 5 ओहम, दिस इज 4 ओहम, and here is 10 ohm, and you are expected to find out that how much current is passing through these two separately. मतलब how much current is passing through 4 and how much current is passing through 10. So it's very clear that the in the diagram the current flowing across 5 ampere. तो इसमें से जो करंट जा रहा है वो कितना है, 1 एम्पियर करंट है. तो ये 1 एम्पियर करंट है, तो इन दोनों को मिला के करंट जो जाएगा वो भी 1 एम्पियर ही होगा. Let me tell you, 1 ampere ही होगा. So basically let me tell you, in case of this particular question, the current is 1 ampere. That means the current of the circuit, whole complete circuit itself is 1 ampere. Okay, first of all I'll find out, in case if this is R1, this is R2 and this is R3, 1 upon Rp is equals to 1 upon R2 plus 1 upon R3. I'll find out this. R2 is 4 plus 1 upon 10. ओके, तो आई थिंक इसका एलसीएम होगा 20. सो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2. तो योर आंसर इज 5 प्लस 2 7 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 20/7. मे बी यू कैन राइट इन डेसिमल इफ यू वांट, बट आई डोंट वांट टू डू दैट. तो दिस इज व्हाट माई RP. If I want the total, then I have to go for RS. So RS is equals to 5 plus 20/7, which can be equal to 30, 35 plus 20 for 55/7 ohm. ये हो गया मेरा total resistance of the circuit. Total resistance of the circuit. Now current is very clear. I am given a current, so I can easily find out the PD across it. I can easily find out, that's not the problem. So PD भी फाइंड कर सकता हूँ मैं. PD कितना होगा, V इज इक्वल्स टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. I करंट तो 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस तो कितना है, इंटू 55/7. तो वही आंसर होगा, 55/7 वोल्ट इज नथिंग बट योर V और PD.
ठीक है. बट वॉट एग्जैक्टली वी वर एक्सपेक्टेड हियर इज नॉट पी डी. वी आर एक्सपेक्टेड हियर इज नथिंग बट द current separate current passing through 4 and 10 ohm. तो how to find out the separate current passing through 4 and 10 ohm. अगर मुझे करंट फाइंड करना है तो what I must know, I must know its PD. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए सेपरेट. ठीक है, सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए. बट एक चीज़ आपको पता है क्या इसमें, कि ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम मैं इस वे से रिड्यूस कर सकता हूँ. ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ. तो ये हो गया मेरा 5 ओहम और ये जो है ये हो गया मेरा 20/7 ओहम. बराबर है. नाउ द करंट पासिंग थ्रू दिस 20/7 ओहम इज ऑल्सो 1 एम्पियर बिकॉज इट इज सीन इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सो कैन आई फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? येस, आई कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बिकॉज आई नो द करंट. ठीक है, तो हाउ टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंप्लीट रेजिस्टेंस देयर? आई कैन गो फॉर इन दिस वे. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर. करंट तो 1 एम्पियर है, आर कितना है? रेजिस्टेंस 20/7 है. तो व्हाट इज माई आंसर इज 20/7 इज माई पोटेंशियल डिफरेंस. राइट. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज कितना है? 20/7. As it is a parallel combination 4 and 10, potential difference remain constant. So for 4 ohm the potential difference is same, and for 10 ohm is also the same potential difference, that is 20/7. So now what I can do, I'll just solve it here. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं. So now I want to find out current through 4 ohm resistor. तो I is equals to क्या होता है? फॉर्मूला पता है आप लोगों को? देख लो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर. वी कितना है? 20/7 अपॉन आर. रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम. दैट्स इट, हो गया. तो ये कितना हो जाएगा? 20/7 इंटू 1/4 विच इज़ 5/7. एंड इन द सेम वे यू कैन फाइंड फॉर द 10 बिकॉज 10 के लिए भी V रिमेन सेम, R ओनली इज गोइंग टू बी चेंजिंग, दैट इज 10. सो ये 5/7 आएगा और वो आएगा 2/7 वोल्ट. ऑफकोर्स वोल्ट, ओ सॉरी वोल्ट नहीं, करंट है ना ये, एम्पियर, सॉरी. तो इट इज़ गोइंग टू बी इन एम्पियर. तो ये ट्रिक है, ट्रिकी क्वेश्चंस है, इतने आसान नहीं है जितने वो लगते हैं. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स द रीजन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग. ओके, प्रैक्टिस all the questions. It's not easy, so that's why I was not interested in taking electricity topic, but unfortunately as it is done in the school I have to take it, no option. But again, one thing I'll ensure that we will be taking all that as soon as we begin the class. Okay, don't worry. So in the revision time I'm taking all these extra questions, but what you have to do, try to understand, you also have to take some responsibility and complete it. Okay, let's start. A resistor has resistance of 176 ओम. मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है? 176 ओम है, रेजिस्टर है. हाउ मेनी दीज रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल? ओके, तो ये ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया, ऐसे 2 किए, 3 किए, 4 किए, पता नहीं कितने किए. ठीक है, पता नहीं है कितने किए. So that their combination draws a current of 5 एम्पियर. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू इट. तो ये ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जो है वो है 5 एम्पियर. देख लो, एक सर्किट डायग्राम सिंपल से ड्रॉ किया मैंने, ये कंटिन्यू है. मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी दीज रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड, आई डोंट नो अबाउट इट. हाँ, but one thing is true that I know all the values. Current I know, resistor I know, and the potential difference I know. But only thing is that how many these resistors are connected, that I don't know. No issue at all. So पहले total resistance of the circuit find करते हैं. So एक हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? Let there be n such resistor. ठीक है, तो n resistors है, पता नहीं कितने हैं लेकिन n है. ठीक है, सो n रजिस्टर है तो टोटल जो होगा वो पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 है ना, ऐसे ही हो जाएगा ना, प्लस डैश 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 प्लस 1/176. हाउ मेनी टाइम्स है दैट आई डोंट नो. ओके, बट वो कितने टाइम है? n टाइम्स है. मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/RP इज इक्वल्स टू
एन अपॉन 176 हो जाएगा। देख लो, इमेजिन करो 2 टाइम्स होता, एन वॉज 2, देन ओनली 2 होते ना यहाँ पे, ऐसे 2 ही होते, तो 2 अपॉन 176 होता। एन इज इक्वल टू 3 होते, 3 अपॉन 176 होता। एन इज इक्वल टू 5 होते तो 5 अपॉन 176 होता। एन इज इक्वल टू एन है तो एन अपॉन 176 हो जाता। राइट, इज दिस क्लियर? सो आर पी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 176 अपॉन एन। ये हो गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बट व्हाट आई नो दैट द आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर कितना है, 176 अपॉन एन। वी कितना है, 220। करंट कितना है, 5 है। तो शिफ्ट करो, एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको, मतलब 176 इंटू 5 डिवाइड बाई 220 इज इक्वल टू एन। एन को उधर शिफ्ट किया, बाकी सब इधर शिफ्ट कर दिया। ये है मेरा आंसर, मतलब मे बी दिस इज व्हाट माई आंसर इज। चलो देखते हैं, 176 इंटू 5 अपॉन 220 ये डिविजिबल है क्या? मुझे लगता है ये 11 से डिविजिबल है। 11 1 ज़ा 11 6 ज़ा 11 2 ज़ा 0 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, yes it is divisible, that's it. So I got the answer, n is equals to 4. So how many such resistors are needed to be put into the circuit is nothing but 4 such resistors are supposed to be needed there. सिंपल था, बहुत ही सिंपल था कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, इट्स नॉट बिग डील, है ना? तो थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग ऑफ द सेम कैटेगरी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, इसलिए डायग्राम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग डिस्कार्ड कर सकते हो 10th क्वेश्चन को, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अ PD of 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू 6 ओम एंड 2 ओम कनेक्टेड इन द सीरीज। तो देख लो, मैं बस डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता। देख लो, अभी ये थोड़ा सा आप लोग खुद से ट्राई करो। 2 रजिस्टर्स है, एक 6 ओम का है एंड सेकेंड इज 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दिस इज व्हाट माई बैटरी विच इज़ 4 वोल्ट। ठीक है, PD इतना है। तो PD जो है वो इतना है, ये हो गया मेरा सर्किट रेडी। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, ये तो सिंपल है, तो ओरली बता सकते हैं आप लोग इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस को पकड़ के ये PD है तो करंट फाइंड कर सकते हैं। देख लो, करंट फाइंड करना है मतलब आपको PD पता होना चाहिए, PD तो पता है, एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों का मिला के रेजिस्टेंस हो जाएगा, दैट्स इट। अभी PD अक्रॉस 6 वोल्ट, 6 वोल्ट में PD चाहिए आपको, तो 6 वोल्ट का करंट चाहिए। करंट रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये जो करंट होगा वही 6 वोल्ट का करंट होगा। This is the trick. This is the trick. And to understand this, only we took so many difficult questions in the beginning. The reason was this. You need to understand this. तो ये सिंपल सी बात है। करंट तो देखो, PD अक्रॉस 6 ओम 6 ओम आपको फाइंड करना है। PD फाइंड करना है मतलब करंट आपको पता होना चाहिए। तो करंट आपको पता है ना, वही तो करंट होगा जो दोनों में से जा रहा है, क्योंकि इट इज कॉन्स्टेंट, राइट? तो दैट्स इट, यू कैन इजीली सॉल्व इट। नहीं आ रहा है, डाउट करके पूछ लो, आई विल सेंड द सॉल्यूशन, नथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये वही कैटेगरी है। ये कनेक्शन कैसे है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है मतलब हम लोग उसका 1 अपॉन आर पी कर सकते हैं ना, तो वो कर देंगे। ठीक है, देख लो, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। यू मस्ट नो टू फाइंड द एलसीएम, नाउ दैट आई कैन नॉट टीच यू राइट नाउ। ओके, तो इसका एलसीएम कितना है, 30 है। तो 30 मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, तो 6 3 1 9, 9 प्लस 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/30, 1/3, तो 3 आ गया ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, देख लो। मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। ये तो पैरेलल में है, पैरेलल है मतलब व्हाट रिमेन कांस्टेंट, potential difference remain constant. That means for 5 ohm, this is R, potential difference will be 12. ठीक है, R पता है, V पता है, कैन यू फाइंड करंट, फिनिश्ड। कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दूसरी चीज मालूम है, पुट कर दो, दैट्स इट। अभी फॉर 10 ओम, ये तो R की वैल्यू है, V कितना रहेगा, सेम रहेगा 12 वोल्ट, क्योंकि कांस्टेंट है। 30, दिस इज माई R वैल्यू, V constant 12 वोल्ट। आई कैन इजीली फाइंड आउट द करंट फॉर ऑल द 3 केसेस, तीनों केसेस के लिए मैं करंट फाइंड कर सकता हूं। कैन आई फाइंड टोटल करंट, 2 वे से कर सकते हैं। ये जो मैंने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया, ये टोटल रेजिस्टेंस एंड ये 12 वोल्ट पकड़ के हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इसका करंट और इसका करंट ऐड करके यू कैन गिव द टोटल करंट, दैट्स इट। 2 वेज है,
दोनों वेज यूज करके इक्वल है क्या ये भी देख सकते हैं, यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है। थर्ड वन इज टोटल रेजिस्टेंस, वो तो मैंने फाइंड कर दिया 3 ओम है, पैरेलल में है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ट्रिक तो ज़रूर है। तो बेस कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया इन दिस क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो बेस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो पहले से वीडियो देखो, मतलब कौन सा वाला, लास्ट एस्टरडे वाला वीडियो एंड टुडे वाला वीडियो पहले से देखो, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये आपको आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, हो गया, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बहुत सारे। देख लो, पी डी फाइंड करना है, लेकिन हाँ मैंने ये नहीं दिया, यहाँ पे मैं देता हूँ एक 20 वोल्ट का जो ये है, क्या है, बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है, ये मेरा करंट पास हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये R1 जो है, ये R2 जो है और ये R3 जो है, ये कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज़। तो इसके लिए मैंने चेक करने के लिए मैंने सिंपल सा अभी बताया, एक पेन लेके घुमाते जाओ, पेन अगर उठाने की ज़रूरत पड़े तो ये पैरेलल में है, उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये सीरीज़ में, तो तीनों के तीनों सीरीज़ में। तो अगर तीनों सीरीज़ में है, कैन आई फाइंड द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। अभी मैं करंट क्यों फाइंड कर रहा हूँ ये समझने की कोशिश करता है। पी डी अक्रॉस 3 चाहिए मुझे, अगर 3 ओम के अक्रॉस पी डी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, करंट। करंट पता है मुझे, नहीं पता, तो करंट मुझे फाइंड करना पड़ेगा। करंट पहले देखते सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब तीनों का एक ही करंट होगा, तो तीनों को मिला के हमें करंट फाइंड करना है। तो सबको मिला के करंट फाइंड करो, 2 + 3 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 लेके यू कैन फाइंड द करंट प्रॉपरली। ठीक है, चलो ठीक है, आपके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता हूँ, 12 वोल्ट करता हूँ, 20 नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलो 12 वोल्ट पी डी पकड़ के फाइंड द करंट। ठीक है, कैन यू फाइंड इट, करंट फाइंड करके पी डी भी फाइंड करो अक्रॉस 3 ओम, तो वो आपको समझ में अभी आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लो, ये थोड़ा सा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछ चुके हैं क्वेश्चन, एंड इवन इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू कनेक्ट 3 resistors of 6 ohm so that the combination has got 9 ohm resistance। ठीक है, तो मेरे पास देख लें, देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज अप टू। मुझे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 9 ओम चाहिए, मेरे पास 3 रजिस्टर्स है हुज वैल्यू इज 6 ओम, मतलब ऐसे वाले 3 रेजिस्टेंस है, 1 है, 2 है एंड 3 है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 4 वेज बताता हूँ जिसमें आप लोग इस 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हो। पहला वे है ये वाला, 6 6 6, तीनों के तीनों सीरीज में किए। अभी इसका कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6 + 6 + 6, 6 3 18 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चलेगा नहीं। फिर भी सेकेंड वाला देखते हैं, तीनों पैरेलल करके देखते हैं, जैसे कि ये वाला, तीनों के तीनों पैरेलल, तो ये 6 6 6, तो 1/, आर पी इज इक्वल टू 1/6 + 1/6 + 1/6 कितना हो जाएगा, 3/6, विच विल बी 1/2, तो आर पी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी फिलहाल हमें पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अदर वेज क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। इससे पहले भी हमने देखे हुए हैं, जैसे कि ये वाला एक वे है, मतलब तीनों के तीनों सीरीज में नहीं, 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, ऐसे कर सकते हैं, या फिर 1 पैरेलल में 2 सीरीज में, ऐसे कर सकते हैं। एंड फोर्थ वे, दिस इज द लास्ट वे, जैसे कि ये वाला, दिस इज द वे, मतलब 2 पैरेलल एंड देन उसके साथ 1 सीरीज, एंड इसमें कैसा है, पहले 2 सीरीज एंड उसके साथ 1 पैरेलल। ये 4 वेज आपको याद रखने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, याद ही रखना पड़ेगा, नो ऑप्शन। तो चारों में से एक रहेगा जो आपको 9 देगा, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। देखते हैं ये थर्ड वन कितना आता है। ये R1 एंड R2 एंड ये R3 है, तो R1 R2 में पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 + 1/6 विच विल बी 2/6 विच विल बी 1/3, तो RP कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 + 6 9, ये देखो ये आ गया आंसर, आ गया, दैट्स इट। ये भी फिर भी चेक करके देखते हैं, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है,
ये मे बी R1, R2 एंड R3 है। R1, R2 एंड R3 सीरीज में है, तो RS इज इक्वल्स टू 6 + 6 विच इज़ 12 ओम। 12 एंड 6 का आपको RP करना है, मतलब पैरेलल करना है, तो इसे 1/6 + 1/12, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन इंटू 2, राइट। तो इट विल बी 3/12 विच विल बी 1/4, तो RP कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो मुझे कितना चाहिए था, 9 चाहिए था, तो ये 9 दे रहा है, बाकी सारे तो नहीं दे रहे, ये चारों ऑप्शन गलत है। तो हाँ, आप सोचो कि अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, इमेजिन करो एग्जाम में आया, तो आपको करना क्या है, इतना सब कुछ करना है, देन यस यू हैव टू डू दैट। एंड ये बहुत शॉर्ट में क्विकली करना है। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन दिस, एंड यू विल बी यू विल डू द प्रैक्टिस, डोंट वरी। तो मैंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन के साथ एक सब क्वेश्चन, मतलब एक उसका एक पिल्लू, उसका एक छोटा सा बच्चा भी छोड़ दिया है क्वेश्चन के साथ। तो आपको करना क्या है, ये 6 ओम को कनेक्ट करते हुए 9 ओम रेजिस्टेंस आपको मिला, ये 4 कॉम्बिनेशंस को करके आपको करना क्या है, 4 ओम का चारों के चारों कॉम्बिनेशन में उसका आंसर क्या क्या आता है, ये आपको देखना है। आपको यहाँ पे एक बात पता चली है क्या, सीरीज में अगर आपने कनेक्ट किया तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस आता है, एंड पैरेलल में अगर किया तो सबसे लोएस्ट आता है। ठीक है, तो मैं अगर कलर चेंज करके मैं आपको इसके वैल्यूज़ बताता हूँ। सीरीज में कितना आता है, टोटल 18 आता है, पैरेलल में 2 ओम आता है, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 4 था। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू इज व्हेन यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड लोएस्ट वैल्यू इज व्हेन यू इट इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो रिमेंबर, देयर कैन बी क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव दैट हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टर टू हैव अ लोएस्ट combination of the resistance, lowest equivalent resistance. So the answer is what? Answer is yes, parallel combination, and highest is in the series combination. Okay, so keep in mind and continue solving. We have taken a lot of question today, considering that you all have learnt the yesterday's task. चलो 15 भी आपको कंप्लीट करना है, ईजी है, बहुत ईजी है। बस instead of resistor, the word is used as a lamp, toaster, water filter and all. Okay, but the basically it is all R values, R1, R2, R3, and how are they connected in parallel. तो रीड करो ठीक से, ड्रॉ करो डायग्राम, सर्किट डायग्राम खुद से ड्रॉ करो, ये आपको खुद से करना आना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, सारे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। ये देखो, हाउ कैन यू कनेक्ट 2 ओम, ये वही वाला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कनेक्ट 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम टू गिव द रेजिस्टेंस 4 ओम। तीनों को ऐसे कनेक्ट करो कि रेजिस्टेंस कितना दे, 4 दे। अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो 2 + 3 + 3 और 6 हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूँ, अलग अलग वे देखता हूँ, सारे वेज करो ना ट्राई, एंड 4 ओम क्या देगा, दैट यू मेंशन। अब ये 1 ओम है, तो मुझे लगता है तीनों अगर मैंने पैरेलल में किया तो मुझे लगता है 1 ओम मिल जाएगा, क्योंकि इट इज़ वेरी लो वैल्यू, तो वेरी लो वैल्यू मतलब पैरेलल में आ जाएगा। ये तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। फिर भी 4 ही तो ऑप्शन आपके पास है, 3 के लिए 4 ऑप्शन है, 3 ओम 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 4 ही ऑप्शन आपके पास है। बस 4 ऑप्शंस को ट्राई करो एंड गेट द आंसर डन। ठीक है, तो ये तो करना पड़ेगा प्रैक्टिस, और ये फिर द क्या बोलते हैं इसको, सॉल्विंग मेनी मोर क्वेश्चन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपको करना है, दैट्स इट। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ये हम बाद में करेंगे। तो यहाँ तक आज आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 17 तक। मुझे लगता है मे बी यू मे फील कि ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिलीव मी, जब तक आप लोग ये कंप्लीट नहीं करेंगे, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आई हैव गॉट इन द वर्कशीट, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन, राउंड अबाउट मोर देन 20-25 questions we have got in the worksheet based on the same concept, similar concept. So practice only will help you in growing in this particular topic. And इस topic में ये छोड़ के, I mean to say, except this numericals, there is nothing other than the numericals. So focus only and only on the numericals properly. ओके, बाकी चीज़ें मैं आपको ऐसे यूँ करवा के दूंगा इन द क्लास। इफ़ आई टेक वन सिंपल रिविजन, द टॉपिक विल बी डन फॉर अदर थिंग्स लाइक ऑब्जेक्टिव एंड ऑल, लेकिन न्यूमेरिकल्स नो, यू हैव टू फोकस, ओके, यू हैव टू वर्क। Fine. So hoping that you will be completing it today, and maybe if you want, you can send me doubts. Doubt you may send in the group. Let me tell you, मैं ग्रुप में क्यों बोल रहा हूँ, आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ग्रुप में आप लोग डाउट भेजोगे तो बाकी लोगों को समझ में आएगा कि कितने सारे बच्चे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल दोज
स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी ये लोग कर रहे हैं, जिनको भी ये डाउट है, वो डाउट भेजे. Whether you are with me for mathematics or only for the science or whatever it is, you can send me the doubts. We will be clearing it. So don't worry. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow.